अच्छा, अभी बानी सन हमनी के शुभारंभ के पहिलका मंजिल पर हमरा साथे बानी आदित्य मधुकर जी, यहाँ के कला क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम बा पश्चिम चंपारण में। एगो बात ये कहे कर रख कि कई गो ऐसा भ्रांति फैल जाला नो, जो अंग्रेजी बोले वाला जे बा वो भोजपुरी नहीं जानत, भोजपुरी बोले वाला जे बा वो हिंदी ना जानत हुई, भोजपुरी बोले वाला इवन वैज्ञानिक भी नहीं हो सकत। तो ऐसा ऐसा कई गो मैंने ये सब साइकोलॉजिकल मरीज लोग के निशानी है। ये रोगी बीमारू लोग ऐसा सोचेला, ये लोग के कमी नहीं है। अभी पूरा संख्या में अभी बहुतायत लोग बा। खास करके अभी हम गांव समाज में देखे नहीं, छोट छोट लड़का अभी जन्म लेता रहे सन, अभी भोजपुरी नहीं सीखले, बाप मतारी दिन भर भोजपुरी कूटता, लेकिन वो भोजपुरी नहीं सिखावत, वो तुरंत हिंदी सिखावता है। ऐसे ओकरा समझ में आवता जो हिंदी बोले लगी तो तुरंत वो अब्दुल कलाम साहब हो जाए। ऐसा बात नहीं है। भोजपुरी बिहार छोड़ के पश्चिम चंपारण बिहार कुछ पश्चिम बंगाल के भी हिस्सा में बोलल जाला, कुछ हिस्सा झारखंड के भी बा, बहुत सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश के भी बा, कुछ नेपाल के भी हिस्सा बा जहाँ भोजपुरी खूब चलेला। तो बस इतना कहे के चाहत रही कि भोजपुरी इतने दूर ले नहीं है। अब पश्चिम चंपारण से केहू गए फिजी में बस गए, इंग्लैंड में बस गए, अमेरिका में बस गए, तो सबके भोजपुरी बोलेला। तो भोजपुरी चारू ओर बा, लजैला डरैला के गरज नहीं है। जब कोनो ऑफिस में जाता नहीं भोजपुरी बोल दें तो साहब का कहें कुछ ना कहें, हम तो जहाँ जानी भोजपुरी बोले नहीं। तो अभी बात ये कहे कर कि ये वीडियो कम से कम बाहर जाओ, आप देखो लोग कि ना अंग्रेजी बोले वाला लोग भी बा भोजपुरी में, अच्छा वैज्ञानिक लोग, संगीतकार लोग के नहीं खे। तो जब सब केहू यही जैसे बा, यही माटी से बा, तो ये भाषा बोले में का झिझक बाटे, कोनो झिझक ना होके चाहिए। तो हम तनी एक जाने के चाहे आदित्य बाबू से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द भोजपुरी लैंग्वेज, बिकॉज various types of people know that Bhojpuri is the language for the illiterate class. What do you think? First of all, thank you so much, sir, for having a good conversation with me. What I think is that Bhojpuri is just a language, and language is a means of communication. We just want to communicate to the people. We just want to address them. We just want them to understand our feelings. So, as English is a language, Bhojpuri is also a language. And wherever the Bhojpuri people live, the people who understand Bhojpuri, the people who can speak Bhojpuri, they love to speak in Bhojpuri because it shows your culture and arts. Every language is associated with some cultures. As English has got the Western culture, Bhojpuri has also its own culture. So you can't say that people speaking Bhojpuri is an illiterate person, whereas the person speaking English is a very educated person. Education is not defined by the language. But here there are some people, or you can say the mindset of the people of, especially the people of India, believe that if you are speaking good English, or it means that you are well educated, because we have been ruled by the Britishers for more than 200 years. So that is the mindset which has been given by the Britishers, that if you speak English, it means you are more educated, because that was the way of their thinking. So now what we need to do is, we need to somehow encourage people to adapt our own culture rather than getting involved in Western cultures. And I strongly believe that if you speak Bhojpuri, if you are very confident in your mother tongue, then you are somehow encouraging the people and the country, and you are helping in the development of the country. Thank you. And another more question is, Bhojpuri is the root, and it shows the culture, fundamental or traditions which is related for the areas coming from Bihar, Uttar Pradesh, Nepal, and the various types of cultures correlated each and every area with a line. Now we are on the roof of Subharam on first floor. Let us walk with me. We can see that the paintings and the handicrafts materials, things on the first roof of the Subharam Hotel, that is paintings and sculptures. These are the creations by soil, black soil. A combination of mud and sand. Yes. This all This are is the plant. handmade paintings. Plant, natural plant, not plastic. And artist name is Priyanshu Kumar.
तो अब थोड़ा सा हमने के बात कर लेम सन प्रियांशु बाबू से। प्रियांशु बाबू, ई बतावल जाओ अपने के कि हई सब का बनौले बानी, कुछ एकरा बारे में बतावे के चाहे काहे ना, जरूर बताएं। ई जौन बा ई आए वाला समय के ई दर्शावता। हेने जौन अभी पहले के दिन बा, हेने आई तो जन गंदगी सुखाड़ और फिर से आई पर्यावरण के नुकसान के कारण से हेने सुखाड़ पड़ता। हई पृथ्वी और जौन आए वाला समय में बंजर हो जाई। हे साइड जौन बा गोल्डन सुनहरा रंग दर्शावता कि अभी हरियाली बा, सुनहरा रंग। आ हई हीरा, आ हेने कछुआ बा, जौन कछुआ कुछ दिन में रह सकेला सुखाड़ बरसात के उतरे, तो वो अभी जियत आ मानवता भी खत्म हो गई बा। ये सब हम दर्शावे। चलिए धन्यवाद। अभी एगो पेंटिंग बाटे, अभी ये पेंटिंग के बनौले बानी सिमरन कुमार सोनी जी, चित्रकला से बानी यहाँ के। यहाँ के अभी हई जौन 4-5 गो पेंटिंग लौकल ह, एमे हमरा पसंद के 2 गो पेंटिंग बहुत अच्छा लगल ह। एगो पेंटिंग हई बा आ एगो ठीक एकरा ऊपर बा। ये दोनों पेंटिंग के का सोच के बनौले बानी? ई हम एक ग्रामीण लड़की जेके एक मतलब एक कुछ करे के इच्छा भी होखेला, लेकिन फिर भी वो अपना अंदर दबा लेवेली। ओके वजह से हम एक ग्रामीण लोगों अगर ये चित्र के देखें तो ये चित्र में मायूसी, कसक, पछतावा, उम्मीद सब कुछ बा। क्या आदित्य बाबू कुछ कहे के चाहे में पर ये चित्र के बारे में रुआ कुछ कहे के चाहे? This is a beautiful painting showing the emotion of a lady, and it has been very beautifully defined by the painter. And she shows that a villager girl who has got so many expectations from the society, from the world, but she knows that she has got a limitation in the society, and that's why she's just showing the emotion. And very beautifully this portrait is showing the emotion of a lady living in a village with lots of expectations. Personally, I can find the emotions, sadness, expectations in this picture, and the good work of Simran Kumari. Thank you. हे फोटो के बारे में का कहे के चाहेम? हेकरा बारे में एक ही हम बनेले बानी एक शहरी लोकेशन देके, मतलब कि जैसे कि शहर में आजकल सिर्फ घर ही घर दिखत आटे, पेड़ पौधा खत्म होके के खत्म हो गइल बा, लगभग खत्म हो गइल बा। ओके हम जनाए के चाहतानी कि हमनी के अगर चाह दी तो पेड़ पौधा भी अपना जगह में ही, थोड़ा सा ही जगह में अच्छा तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। Now we are on the 3rd number of this stall, and now we have Gitanjali Kumari, and I can see that a portrait that is by the name of the Kerala story with a good picture, good creation, good work, Kerala story. सिमरन कुमारी जी का नाम है गीतांजलि कुमारी जी। रउआ बताएं कि हई जौन बनौले बानी ई का सोच के बनैनी, का और मन में का चलत रहे है सब बनावे के बारे में कुछ बताएं है फोटो के बारे में? जो लड़कियों के साथ मतलब गलत कामें हो रहा है उसी का मतलब मैं दिखाने का प्रयास की हूँ कि इसके आंखों में जो छवि दिख रहा है, और फियर, सैडनेस एंड This portrait, eager to get help from anybody, and if any more things you can find, then please define it. I think this portrait has been inspired by the famous movie The Kerala Story, and the same thing the painter want to express in her painting. She is showing that a woman is going through many emotions such as fear, such as sadness, and more often she is very afraid of the society. So this painting has been inspired by the famous movie Kerala Story, and the same emotion has been portrayed, and beautifully she has defined all the emotions, including the fear, the sadness, and a feeling of help. And I She want is to expecting help. add one more thing. One drop of tear. Yes. Good work, great job. Another thing is Lord Shiva and Hanumanji. Am I right? Yes. There are two Indian god
देवता भगवान जी in one portrait with the half of their face, including one portrait. I am speaking in English because you can understand that the Bhojpuri language is not the language for the illiterate. It is a language for the fertilized mind. If we can say that the Bhojpuriya mind is not the common mind, that is it is not wrong. Bhojpuriya mind is super excellent mind, and if you come to the Bhojpuri areas, then you find the various types of mind: scholars, scientists, doctors, and governors, politicians, artists, and so many more. Now we have अमन अयाज। तो हम लोग अमन अयाज से तनी बात कर ली। अमन अयाज जी के एगो पेंटिंग बा जौन हमरा बहुत अच्छा लगल पहिलका नज़र में। एगो तो हई बाटे, यहाँ के थोड़ा सा चिपका देले बनी, अपने के दिखा दिया नीचे से। अमन अयाज जी एकरा बारे में तनी बतावल जाओ, हई का सोच के बनैले बानी, आँख में से गिरता, बोलल जाओ। This is a basically fear of supernatural power, like बंगाली आत्मा है, और इसको उससे इसे इंस्पायर होकर इसे बनाया है मैंने। और ये सब मतलब फियर है, फियर के लिए। अगिलका में आइल जाओ, हई एगो फोटो बाटे, का कमाल के फोटो लगावल बा। एगो आदमी बा, एगो डांटा बा, हई पहाड़ हो, गोल गोल पत्थर, पहाड़ ना पत्थर, आई लगा के उल्टा होता। एगो छोटा सा डंटा बा, एगो छोटा सा आदमी, ये आदमी के पूरा बॉडी से 10 गुना वजन के होई का आदित्य बाबू। अब देखल जाओ कि हई प्रयास कितना अच्छा करल बा, बहुत अच्छा मैसेज बा। और का कहे चाहे में कुछ मुश्किल नहीं के, अगर लगन होई, हिम्मत होई, तो आदमी कुछ बड़ा से बड़ा पहाड़ खींच के आ सकता अपन इच्छा शक्ति से। वो एक इधर भोजपुरी वाला समाज के हिंद दृष्टि वाला देखे वाला भाई साहब लोगन रोवालोनी तनी सुधर जाई, अपना मानसिकता में बदलाव ले आई। भोजपुरी वाला लड़का सब देखी कैसन कैसन कलाकारी करेला, कैसन कैसन भाषा जानता, अब भोजपुरी बोले में रोवा लोगन के लाज लगता। ये सब बात ठीक नहीं है। हमनी के संस्कृति बा भोजपुरी, कहीं कहीं हमनी अपना ना भाषा बोले में शर्म आवे तानी, जबकि अंग्रेज लोग के भाषा हमनी बोला तानी कि हाँ, लोग सीखे में, वो लोग सीखे ला बेचैन बा। जे कितना आदमी आइल बा पत्रकार जेकरा भोजपुरी बोले के नहीं कहत, तो कहत हम सीखे के कोशिश करता नहीं, आ हमनी के आइल बा तो हमनी के बोलते नहीं। Now we are on the 5th number of the stall, which indicates the designing and the base of the Madhubani painting. But what is the specification of this portrait? We have the painter, creator, worker of this painting. Her name is Swati Barnwal. तो स्वाति बर्णवाल जी थोड़ा सा ये सब जौन बनौले बानी एकरा बारे में बतावल जाओ। जी जी, ई मधुबनी पेंटिंग के थीम पर ही सब पेंटिंग बनल बा। जैसे कि सामाजिक समरसता, जैसे एगो आदमी बाड़न वो अपना बेटा के लेवे की कोशिश करता रहन, जैसे इक्वालिटी के भावना भी बाटे और ई समृद्धि के आधार भी बाटे। हौ जौन पेंटिंग बाटे वो स्वदेशी जीवन शैली पर बा। कुछ लोग हल जोता, टायर बैल पर ले आवता, औरत लोग बा लोग जौन अपन काम कर रहल बा, फटकता लोग, बहारता लोग। वो गाय के बटल बांधल बाड़ी गाय, वो औरत जौन बाड़ी कुआं से पानी भर के लेके आओ तरी, अपन जितना भी बा पर्यावरण केंद्रित ही बा। हयू पेंटिंग बाटे जौन पर्यावरण केंद्रित ही बा। हौ पेंटिंग बाटे उ सांस्कृतिक आधार पर बा। कृष्ण जी के हटे जौन कौन ऊपर बैठा कालिया नाग पर वो खड़ा बाड़न, ये आधार बाटे। थोड़ा सा एगो बात हम कहे के चाहें, कहे कि एकल परिवार सुखी परिवार ये तो बहुत अच्छा इंडिकेशन बा। हई जोन अभी लौकता कुआं से पानी वाला, भले हमनी के फोटो में बनौले बानी सन, का ऐसा लौकता कि समाज संभव बा कि कुआं तक पहुंच जाए? जी बिल्कुल संभव बा। अगर ठंडा पानी पिए के होको तो बिल्कुल संभव बा। अगर स्वदेशी जीवन शैली अपना लिया तो बहुत सुखी आदमी हो सकता, भीड़ भाड़ से दूर, पर्यावरण बहुत अच्छा हो सकता, धुआं धुक्कड़ से दूर, बहुत कुछ अच्छा बदलाव आ सकता पर्यावरण का। हम एगो बात थोड़ा सा यहाँ जरूर ऐड करे के चाहें, कुआं के पानी हमनी के छोड़ दहनी सन, आरो के पानी पिए लगनी सन, तो 10 साल आरो के पानी पी लेनी सन तो डॉक्टर साहब कहले जब भी मत पियो, कुआं वाला पियल शुरू कर दो।
तो विकास को के आरू ले गई सो ना, फिर डॉक्टर साहब के पैसा दे के कहता है ना बैग गियर लगा लो चल जा कुंगा ले। आप पैकेट वाला दूध पिए तनी सन, फल वाला पॉकेट के दूध हमनी के पी ले तनी सन, डॉक्टर साहब के खूब पैसा दे दे तनी सन, और डॉक्टर साहब भी बाद में बता देता नहीं कि ना अभी दूध नहीं के पियला करो, एगो देसी गाय रखी ओकरा दूध में कम फैट होला, अमृत कहल जाला ओकरा के, आउ पी ओई से रुआ ठीक होके। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाओ, धन्यवाद। अभी हमने क्या गइल बानी सन अंतिम स्टॉल पर, एजा एगो भोजपुरी पेंटिंग लगल बा। अभी ले हम सुनले रहनी है मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये सब सुनले रहनी है, लेकिन भोजपुरी पेंटिंग कभी ना सुनले रहनी है। हमरा साथे बानी अभी एमजेके कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान चौधरी सर, यहाँ के हमारे गुरु जी भी हैं। बस हम जाने के चाहें कि भोजपुरी पेंटिंग के बारे में यहाँ के का कहें, थोड़ा सा सर का कहे के चाहें भोजपुरी पेंटिंग के बारे में। भोजपुरी पेंटिंग तो अद्भुत बा। पहली बार भोजपुरी पेंटिंग देख के मन गदगद हो गई बा, और हम तो चाहता नहीं कि ये सब प्रदर्शनी महाविद्यालय स्तर पर हर महाविद्यालय में लागे, ताकि एक एक बच्चा भोजपुरी भाषा और उसके कला से परिचित हो सके। तो जौन बहन बनौले बानी यहाँ के का आशीर्वाद दे हम चाहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारा आशीर्वाद बाकी बहुत आगे बढ़ी और देश ना दुनिया में नाम करी। Now this is the last stall of this floor, and it shows the Bhojpuriya painting. We don't heard about Bhojpuriya painting before this, and we have Rai Nandini. She is from Saran, Bihar, and especially a specialist of painting, Bhojpuriya painting, and we have also a scholar of this area and the good artist Aditya Madhukar ji, and also I want to these paintings. Aditya ji, what do you think about these paintings? Because we have heard about the Madhubani painting, Darbhanga painting, and so many more. And first time, I personally can say that the first time I can see the Bhojpuriya painting. What do you think and what do you want to say about this? See, Bhojpuri painting is all about the soul of this tradition, the language, the beautiful language it is, and it only shows the emotion of the people. I have also visited this Bhojpuri painting earlier also, and today in this Bhojpuri Kala Utsav, I think it is the best portrait painting you can find, because it is just not showing the emotions, but it is also showing the beautification of the language, and that shows that the people who are somehow have been joined to this language are genius by the mind and also by the emotion. Now we have a great person. His name is Sanjeev Sinha, and he is from Ara, and especially he is a great artist. Namaskar. He told me that Bhojpuri painting on Yarwada Charkhe has been selected for world record and got world record in 2021. Yarwada Charkha is made by the Gandhiji in Yarwada jail, and the Bhojpuriya painting was made on the Yarwada Charkha, and that got the world record in 2021, and the maker of that painting, in other words, artist of the painting, is Sanjeev Sinha ji. He is a great artist, and very congratulations for West Champaran or Bihar or India or society, and deepest congratulations for our heart to get that. तो प्रणाम बरुआ के और रुआ से कहे चाहें जो थोड़ा सा बताओ जाओ ई का कहे के अपने चाहत रहनी हो जे कैसन रहल ई यरवदा जेल में यरवदा चरखा बनल का ओकर महत्व रहल, कैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हिंग कोनो चीज़ ना बनत हुई, अगर बनता तो जरूर दुनिया के नज़र में हुई। अगर दुनिया के नज़र में बा भोजपुरी, तो फिर भोजपुरी के लोग हे नज़र से काहे देखता।
अगर भोजपुरी के ठीक नजर से देखल जाता तो भोजपुरी के गंदा करे वाला पर कार्रवाई काहे नहीं हो? उस पर कार्रवाई कैला से कोनो चीज़ साफ ना हो जाए। सबसे पहले हमनी के समझे के होई। हमनी के गलती बाकी हमनी के खुद भोजपुरी के गंदा कही जाए। हमनी के समाज के लोग गंदा न कहता, दूसर कोई थोड़ी कहता। हमनी के कहते गंदा गाना गावत है, गंदा गाना नहीं खान गावत, वो गाना के जगह बदल दिले बड़े, ठीक ना। जैसे हमनी ही डोमकच होला, डोमकच का है वो पूरा सेक्सुअल आधारित है। अब ओकरा के हम भरल सभा में करे लगे तो गंदा हो जाए, लेकिन वो जहाँ के चीज बा ओकरा के उइजे रह दिया तो ओकर शालीनता बरकरार रहे। यही गड़बड़ हुई बा, कुछ नहीं के भइल। दूसर भाषा में भी जाए कहाँ सेक्सुअल गीत ना होला, हमनी के नहीं के समझ में आता, गंदा नहीं के लागत। हिंदी में भी बहुत गंदा गंदा फिल्म बनेला तो लोग देखेला ना पूरा परिवार के साथ। हमनी के आपन चीज के अपने गंदा करते हैं, जा ओकरा के बचावे के। यरवदा चरखा के बारे में, भोजपुरिया पेंटिंग के बारे में कुछ कहल जाओ। जी, यरवदा चरखा के निर्माण भई रहे भोजपुर में, गांधी जी के शताब्दी वर्ष मनावल जात रहे। तो हमनी के चर्चा भइल कि आखिर का ऐसा कइल जाओ, चूँकि शताब्दी वर्ष मनता तो बहुत उत्सव के बात बा, सरकार भी ओकरा के नहीं कैले। तो हमनी के निजी स्तर पे सृजना न्यास बा, तो सृजना न्यास भोजपुरी कला यात्रा चलावेला। तो हमनी के भइल कि ऐसा का कइल जाओ कि लोग भी जाने और एक एगो ख्याति भी प्राप्त हो जाए, अंकित हो जाए। तो भइल कि कुछ ऐसा कइल जाओ। तो हमनी के खोजनी जाता, गांधी जी जब यरवदा जेल में बंद रहन तो वो एगो चरखा डिजाइन कैले, जोना के पेटी चरखा भी कहल जाला। आ यरवदा चरखा ऐसे कहल जाला चूँकि यरवदा जेल में रहन आ वही घड़ी ओकरा के डिजाइन कैले रहन। तो हमनी के उहे चरखा के विश्व के सबसे बड़ा चरखा बनैनी जाए, 8 बाई 24 फीट के बाद पूरा चरखा पे गांधी जी के चित्र भोजपुरी शैली में बनावल बा। यही से ओकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनल, 2021 में ओकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल। पूरा मतलब भव्य समारोह भई रहे, हमनी के सब लोग आयल रहे और ई भई रहे। अब भोजपुरी पेंटिंग में अभी हमनी के कोहबर आ पीड़िया दूगो हमनी के जान लिया, कोहबर आ पीड़िया। कोहबर पीड़िया के अलावे कोहबर पीड़िया घर दीवार के चीज़ है, एकरा के बाहर निकाले के पड़ी से। तब भोजपुरी कला यात्रा के जब शुरुआत भइल तो हमनी के ओकरा में नया विषयन के समावेश कैली जाए। जिसे कोनो घटना घट जाता, समाज में कोनो घटना दुर्घटना या कोनो उत्सव आवता, तो हमनी के ओह विषय पर भोजपुरी फॉर्म में चित्र बनेली जाए। अभी बहुत सारा चित्र एजा लागल भी बा, जो नाम छठ बा, अभी देखिए चंद्रयान बा, लॉन्च भेल बा, भोजपुरी बहुत सुंदर। तो हमनी के ई काम कैनी जा। वो देखिए बिहार लिखल पेंटिंग बा, बिहार उत्सव दिवस। तो ये सब चीज़ के काम हमनी के शुरू कैनी जा, और आज भोजपुरी पेंटिंग धीरे धीरे लोग समझाता जानता, और हमनी के कोशिश रही ऐसे ही लगातार काम करी जा। और हमनी के पैरेलली बिहार में चूँकि भोजपुरी कोनो ऐसा अथी नहीं है, बिहार के पहचान भोजपुरी से बा, अब भोजपुरी चित्र वो लेवल पे आवे, एकरे प्रयास हमनी के जा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।